वेलकम ग्रेड 9। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? कैसे हैं आप? क्या चल रहा है आजकल घर में? स्टडी को टच रह रहे हैं या बस टाइम पास हो रहा है? तो बेटे द एजुकेटर आर इन कैंपस and grade 9 the subject is mathematics. As you know, you have been completed unit number 4 up to unit number 4, and after that unit number 5, but we are not going to discuss because this is relevant to the graph. So we are going to discuss the trigonometry, and the trigonometry is unit number 6, which is at page number 97. The word trigonometry. The word trigonometry basically is a Greek word trigono, which mean triangle, and metron, which mean measure. It's mean measurement of triangle, particularly a right triangle, as mentioned below. The definition is, first definition from the introduction is the trigonometry is the branch of mathematics that deals with the relationship between the angles and the sides of triangle, especially a right triangle. The first line and the 2/3 line of second. This is a definition of trigonometry. The second definition is identification, identifying angle in standard position, and the degree and the radian. Degree and radian are two units of angle. We will discuss further, but first off, what is angle? The peak of the angle is this one. The second definition start from this one. The plane figure which is formed by two rays sharing a common end point is called angle. From start to there is a definition of angle. And the third definition is the two rays are called arms or sides of the angle. Two rays, ray first, ray second, or you can say ray first, ray second, doesn't matter. And the fourth definition is the common end point. That is the common end point, which is also called vertex. The common end point is called vertex, or known as vertex. Students, you have to read the further paragraph which is not highlighted, and there is below 2 lines for MCQ's point of view, if any exist. Now the final definition of today is angle in standard position. There are 3 different conditions for angle in standard position. Number first is its vertex is located at the origin of the coordinate plane. Number 2 is one of the initial ray lies along the positive axis, and next page, third point, the other ray, the terminal side, determine the direction of the angle. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होगा, वो पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव हो। आपको पता है कि पॉजिटिव जो क्लॉक कैसे होता है वो, और नेगेटिव उसकी मेजरमेंट क्यों होती है और किस वजह से होती है, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। कि देखिए यहाँ पे 45 डिग्री को नेगेटिव शो करवाया हुआ, और ये कैसे आ रहा है बिलो लाइन, ये पॉजिटिव एक्सिस है, और ये नीचे की तरफ से क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेगा, ये क्लॉकवाइज हुआ। और अगर ये पॉजिटिव मेजर है तो वो एंटी क्लॉकवाइज, ये देखें जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो दोनों सूरतों में एंगल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये एक
जो प्लेन है जिस पे आपने टू लाइन परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रॉ की, जिसमें ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, पॉजिटिव वाई है, नेगेटिव वाई है। तो ये 10th की बुक है बेसिकली, आपकी बुक नहीं, तो परेशान मत होना। बेसिकली ये 10th का ही जो कॉन्सेप्ट था उसने ये 9th, ये आपकी बुक है उसने 9th में डाल दिया है। तो बुक चेंज हुई ना, इसलिए ये मैं 10th की बुक से बता रहा हूँ। यहाँ पे ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन इसको किया गया कंपैरेटिवली 9th की बुक की। तो ये देखिएगा वर्टिक्स, हर सूरत में ये वर्टिक्स होता है, वर्टिक्स विल बी द ओरिजिन, ये इसका ओरिजिन है। जब ये टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये उसका ओरिजिन है, ये देखेंगे उसका ओरिजिन है। तो ओरिजिन वर्टिक्स क्या होगा, उसका ओरिजिन। ये एंगल ऐसे बनेगा ना, ये लाइन है, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये उसका वर्टिक्स, दैट विल बी द ओरिजिन एंड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस। बेसिकली टू कंडीशंस हैं। ये जो उसकी टर्मिनाम जो थर्ड कंडीशन होगी, कहते हैं ये लोकेशन ऑफ द एंगल, एंगल कितने डिग्री का है, उसमें उसकी कैपेसिटी क्या है, 40 है, 45 है, 60 है, 90 है। जैसे यहाँ पे 45 आ गया, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कितना बन रहा है, 120 का बन रहा है। इसी तरह ये एंटी क्लॉकवाइज और ये उसके बाद क्लॉकवाइज जो नेगेटिव में गिरता है, ये कितना हमारे पास बन गया, स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव से, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बन चुका है, ये 270। तो ये वाले एंगल हैं इनके। देन वी मूव पेज नंबर 103, एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1। द स्टेटमेंट इज फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाई, नंबर 1, एंड द नंबर 2 इज राइट को-टर्मिनल एंगल फॉर ईच। इनमें से हर एक का को-टर्मिनल एंगल भी आपने फाइंड करना है। तो को-टर्मिनल एंगल क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। तो ये पेज नंबर हमारे पास आ गया 98, जहाँ पर को-टर्मिनल एंगल दिया गया है। आप उसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन करें। को-टर्मिनल एंगल आर द एंगल दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ये स्टैंडर्ड पोजीशन कंपल्सरी, यहाँ तक इसको आप अंडरलाइन कर लें। अब ये यहाँ पर एग्जांपल दी है समझाने के लिए, लेकिन मे भी आप अंडरस्टैंड ना कर पाएँ। इसी तरह मैं इसको आपको पेज पे ले जाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि ये एंगल उसने बेसिकली 45 डिग्री का बना के दिया हुआ हमें। अब एक अगर और एंगल हम ऐसा करें कि यहाँ से ऐसे रोटेट करें, इसी को ऐसे करते 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 वो इसी को ज्वाइन कर ले अगेन। तो आप देख लें ना कि ये जो अगेन एंगल स्टार्ट किया, स्टार्ट भी वहीं से हो रहा है जहाँ से ये 45 वाला हो रहा था, और उसका फिनिश भी वहीं पे, टर्मिनल आर्म भी उसका सेम है, फिनिशिंग पॉइंट भी उसका सेम है। तो ये बेसिकली एंगल कितना बन गया, क्योंकि हमने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया है, एक राउंड कंप्लीट किया है, तो ये 360 का 1 राउंड होता है विच इज़ कंप्लीट एंगल। तो ये 45 एंड 360, ये आपके पास कितना एंगल आ जाएगा जी, ये आपके पास 5 आ गया, ये 0 आ गया और ये आपका, तो बेसिकली 405 का एंगल बन गया। लेकिन दोनों आपस में क्या कहलाए, को-टर्मिनल एंगल, क्यों कि उनका स्टार्ट और उनका फिनिशिंग पॉइंट सेम है। अगेन पेज नंबर 103 जो आपकी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है। 65 का पहला एंगल है, इसका क्वाड्रेंट और इसका को-टर्मिनल एंगल हमने उसको बताना है। तो आप आ जाइए नोटबुक पे, अब सॉल्व करना है। ऐसे ही आपने बड़ा ब्रॉड लाइन वाले नोटबुक लें, उसको नीट एंड क्लीन आप कीजिएगा। तो 65 डिग्री लिखा हुआ है, 65 डिग्री के लिए आपने पहले ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू लाइन स्केल के साथ ड्रॉ करें और 65 का प्रोटेक्टर के साथ यहाँ पे एंगल बना दें 65 डिग्री का। और इसकी रोटेशन क्या होगी, एंटी क्लॉक, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव होगा तो यहाँ से स्टार्ट होगी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। आप देख रहे हैं ये एरो बना हुआ है, ये एरो इसका इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैं करीब इसको कर रहा हूँ, इसलिए ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स लिखा हुआ, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री, 180, 270, 360। तो 65 का एंगल हमने बना दिया। ये था उसका फर्स्ट का जो था आंसर, ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट वाला। उसका सेकंड क्या है, क्या था, को-टर्मिनल एंगल ऑफ 65 इज क्या कहलाएगा। आप उस 360 में, क्योंकि 1 रेवोल्यूशन हमेशा जब भी हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 रेवोल्यूशन ही करना है, 2 रेवोल्यूशन भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, सो मैनी, बट रेवोल्यूशन। तो ये जो
रेवोल्यूशन ऐड किया 65 डिग्री, उसमें ऐड कर दिया, आंसर क्या था 425। तो ये हमारा आंसर कहलाया 425। तो ये फर्स्ट वाला आंसर ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है टर्मिनल आर्म उसका, और दूसरा कोड टर्मिनल एंगल उसका क्या कहलाया 425। इसी का सेकंड पार्ट 135 डिग्री है, ये भी 135। ऐसे ही आपने जो है वो प्लेन ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद 135 का एंगल प्रोटेक्टर से बना दें। आप ऐसे बना के स्टार्ट पॉजिटिव से करके एरो लाजमी बनाइएगा, ईच एंड एवरीथिंग सेम होगी। तो उसके बाद आप इसका आंसर क्या कहलाया फर्स्ट वाला, तो इसका आंसर कहलाया सेकंड क्वाड्रेंट, और इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है 135 का। तो मैं यहाँ पे इसको ज़रा और ऊपर ले जाता हूँ, ये देख लें, ये बिल्कुल क्लियर और करीब इसके ऐसे 360 1 और 135 आप ऐड करेंगे तो ये 495 कहलाया उसका एंगल। आप इसकी मुकम्मल पिक देख लें, ये वाली स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और लेके आप इसको नोटबुक पे आप राइट कर लीजिएगा। इसी का थर्ड वो भी लिखा हुआ है, माइनस में आ चुका है, माइनस में आ चुका है। तो सारा कुछ वैसे ही पहले ड्रॉ करेंगे, एक्स पॉजिटिव नेगेटिव, वाई पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन उसकी मेजरमेंट को नीचे से स्टार्ट कर देंगे। 0 यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस 90, माइनस 180, माइनस 270, माइनस 360, आप ऐसे स्टार्ट कर दें। अब माइनस 40 है तो डेफिनेटली वो माइनस है, तो क्या क्या होगा, ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। तो 40 डिग्री के एंगल आप नीचे ऐसे लगा के रे लगा दें। रे लगाने के बाद उसको नीचे की तरफ ये देखें बनाया हुआ है, और एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये रोटेट कैसे कर रहा है क्लॉकवाइज। अब हमारा तो ये नेगेटिव में गिर देगा -45। किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, फोर्थ में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट चेंज नहीं हो गया। मत समझना कि हमने 0 ले लिया, 90 ले लिया, सॉरी -90 ले लिया तो शायद क्वाड्रेंट 1 ये हो जाएगा, 2 नहीं, क्वाड्रेंट फिक्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, ये देख लीजिए फोर्थ में फॉल कर रहा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाया। अब इसका को टर्मिनल एंगल ऑफ 40 डिग्री मीन -40 डिग्री इस आपने अगेन 360 में उसको करना है। तो ये 360 एज इट इज, लेकिन आपकी बार -40 है, तो क्या रह गया 320। तो ये हमारे पास आ गया 320 डिग्री का इसका को टर्मिनल एंगल। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, तो इसके बाद मैं आपको होमवर्क असाइन कर देता हूँ, आप होमवर्क कीजिएगा, और होमवर्क जैसे जैसे आपका कंप्लीट होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता आपको इन सभी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। मैथमेटिक्स है बेटा, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के अलावा मुमकिन नहीं कि आप इसमें कमांड अपनी या ग्रिप अपनी मजबूत कर पाएँ, लिहाजा प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा इनकी रफ पे भी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।